2017, और 2017 वर्ष में Cambridge University scientists discovered something. और कैम्ब्रिज का जो विश्वविद्यालय है उसने एक चीज को उसको डिस्कवर किया। They found out that 3,000 from now, if you have to calculate, 3,230 years ago, there तीन was a day which was longer than the regular day. और 3230 वर्ष के पूर्व उन्होंने उनको ऐसा पता चला कि एक दिन जो था जो बाकी दिनों से बहुत लंबा था। So, how many hours do we have in a day? और एक दिन में कितने हमारे पास घंटे होते हैं? 24 hours. 24 घंटे। But that day was 48 hours. लेकिन उस दिन जो था 48 घंटे थे। And then the scientists came up with various explanations and reasons why that particular day could have been longer than the rest of the days. और जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने जो उनके जो कॉम्बिनेशन का जो एनालिसिस है उसको ये पता करने की कोशिश की कि ये क्यों लंबा था। They have come up with their conclusions as well. और उनका ऐसा एक परिणाम निकला। And but we have an answer, ready answer, how and when and why this happened. लेकिन हमारे पास जो है एक तैयार उत्तर है कि ये कब हुआ, क्यों हुआ। So we'll turn to the book of Joshua. और हम यहोशू के इस पुस्तक के हम और आगे देखेंगे। Chapter 10 and verses 12 and 13. और इसका यहोशू का 10वां अध्याय 12वां और 13वां वचन। So Joshua chapter 10 verses 12 and 13. और यहोशू उसका 12वां और 13वां वचन। Shall we read together? और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Then Joshua spoke to the समय था Lord in the जिस दिन day यहोवा ने when the अम्मोनियों Lord को delivered up इस्राएल के वश the में कर Amorites दिया। before the उस children दिन of यहोशू Israel. ने यहोवा से इस्राएलियों They को said in देखकर the इस sight प्रकार of कहा, Israel, हे सूर्य sun stand तू still over गिबोन पर Gibeon और and हे moon in the चंद्रमा valley of तू Ayalon. अयलोन की So the sun तराई stood के ऊपर still थमा and the रहे moon और stopped सूर्य उस till समय the तक people थमा had रहे और revenge चंद्रमा उस upon समय their तक enemies. ठहरा रहे जब तक Is this जाति के not लोगों written ने in the अपने book of शत्रु से Joshua? बदला न So the लिया। sun stood still क्या ये बात in the midst शार of नामक heaven. पुस्तक में नहीं Did not लिखी कि सूर्य hasn't to go आकाशमंडल down के for बीचों about a बीच whole ठहरा day. रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। May the Lord bless the reading of this portion. परमेश्वर इस पढ़े हुए भाग को आशीषित करे And may the Lord also help us while meditating upon this portion. और परमेश्वर हमारी सहायता करे जब इस वचन भाग पर हम मनन करते हैं। What a wonderful verse this is. और कितना अद्भुत ये प्रवचन है। And we see the starting of this verse, that is 12th verse, and Joshua spoke to the Lord. और हम यहाँ देखते हैं कि 12वें वचन में उसके शुरुआती भाग में लिखा है यहोशू ने यहोवा से बात किया। And then there he went on to command the sun and the moon to stand still for a whole day. और उसने उस प्रकार ऐसे आज्ञा दी कि हे सूर्य तू उस पूरे समय के लिए तू थमा रहे। And the context is that they were waging a war और इसके पीछे का कारण है कि वो एक युद्ध की तैयारी में थे with the Amorites. और एमोराइट्स इनके साथ। And it was the sun would set even before they win over or they defeat the Amorites. और इनको हराने से पहले जो सूर्य है उसका अस्त नहीं होना चाहिए था। But he did not want the Amorites to escape from their hand. और क्योंकि वो ये चाहता था कि ये जो मेरे जो लोग हैं उसके हाथों से बच ना पाएं। And that's the reason he called unto the Lord and then he commanded the sun and then the moon. और इसीलिए उसने यहोवा को पुकारा और ऐसे सूर्य को ये उसने आज्ञा दी। And we may from a scientific perspective say it is not the sun that goes around the earth, but it is the earth that goes around the sun. और विज्ञान लोग जो ऐसा कहते हैं कि जो सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर नहीं मारता लेकिन जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर मारती है। But we need to understand the Bible is written from an observation perspective. When we observe, it appears to be so it has been written like that, not that it says the sun moves around the earth. और आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो बाइबल है वो जो वैज्ञानिक कहते हैं उसके उदाहरण से ही ऐसा लिखा है और इस विषय में हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। So it is only through observation. That is, when we observe, it appears that the sun is rising in the east and setting in the west. हाँ, तो हम जब सूर्य को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। From that observation perspective, it is written in the Bible. और उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रकार बाइबल में ऐसा लिखा गया है। Not from a scientific angle. वैज्ञानिक रूप से ये बात नहीं लिखी गई। So whatever it is, but one thing that we know, there hasn't never been such a day before or after until now. और लेकिन एक बात तो तय है कि ऐसा जो दिन ना पहले हुआ ना अब है। So that's how we see this wonderful statement about Joshua, but we need to see how it all began with Joshua. और ये एक अद्भुत हम इस वचन भाग को हम देख सकते हैं लेकिन ये जोशुआ के साथ कैसे हुआ। The wonderful lessons that we can learn from his life. और उसके जीवन से बहुत ही अद्भुत हम चीज़ों को हम सीख सकते हैं। We see Joshua's introduction in chapter 17 of Exodus.
और निर्गमान उसके 17 में यहोशू का जो परिचय है उसके विषय में देख सकते हैं। Shall we turn to that portion in chapter 17 of Exodus? और निर्गमान के 17 के अध्याय को हम थोड़ा सा देखेंगे And we see in verses 8 and 9, और इसके निर्गमान 17 और 8 के 9 वचन में देखेंगे। now Amalek came and fought with Israel in Rephidim, and Moses said to Joshua, choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. और 8वां वचन पढ़ता हूँ, तब अमेरिकी और आकर रपीदीम में इजराइल से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कोई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमेरिका से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। So do you see, until these 16 and a half chapters, that is 16 chapters and a half of the 17th chapter, we don't see any mentioning of Joshua in the Word of God. और इस निर्गमान की इस पुस्तक में हम ये देखते हैं कि 17 अध्याय के आधे भाग तक यहोशू के नाम के बारे में हम नहीं पढ़ते। So if someone reads the Bible until chapter 15 of Exodus, they will never come to know about Joshua. और निर्गमान के 15 अध्याय तक यदि कोई इस पुस्तक को पढ़ता है तो यहोशू के बारे में वो नहीं जानता। So look at the introduction. लेकिन यहाँ पे इसका परिचय देखिए। Usually our introductions are given in a very, what you can say, gradual and also a very fancy way. और हम कभी कभी यदि हमारा कभी किसी ने परिचय करना है तो बड़े धीमे से लेकिन एक विशेष बात से हम उसका परिचय करते हैं। Sometimes we are put on a pedestal while we are being introduced. और कभी कभी हमको थोड़ा सा ऊंचे स्थान में खड़ा किया जाता है हमारा परिचय करने के लिए। But look at Joshua's introduction. लेकिन यहोशू का यहाँ पे परिचय आप देखिए। So here the Holy Spirit did not record through Moses saying, Joshua, a valiant man, a warrior, call him and all that. No, not such thing is written about. No such thing is written about Joshua. और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने ऐसा संबोधित नहीं किया कि यहोशू जो था एक ही शूरवीर बलवंत ऐसा पुरुष था, ऐसे उसका परिचय नहीं किया है। It is only said, Joshua, choose some men and go and fight with the people with Amalek in the morning. और यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही उसका परिचय किया कि यहोशू ने कुछ लोगों को छांट कर अमेरिका से उसने युद्ध करने के लिए उसको तैयार किया गया। But we understand that though these things about Joshua's characteristics are not expressed, they are there in him. और हम तो ये जानते हैं कि कदाचित यहोशू के उसके परिचय में ये सारी बातें नहीं लिखी, लेकिन ये सारे चरित्र गुण उसके अंदर थे। What are those characteristics? और ये चरित्र गुण उसके क्या थे? He was a very courageous man. और बहुत ही शूरवीर धैर्य रखने वाला व्यक्ति था। Very strong man. और बहुत ही बलवंत व्यक्ति था। And a man of war. और युद्ध करने वाला पुरुष था। And an able soldier. और एक बहुत ही काबिल जो सिपाही था। And then when we come to the end of this portion, chapter 17, we see that he was very skilled in using the sword. और 17 अध्याय के जब हम बीच भाग में आते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि अच्छा तलवारबाजी भी करने वाला व्यक्ति था। So that is what we understand from Joshua's introduction by Moses. और ये सब चीजें जब मूसा यहोशू को परिचय करता है उसके विषय में हम जान सकते हैं। Chooses some men. और कुछ लोगों को वो चुनता है। And go out. और वहाँ बाहर जाता है। Fight with Amalek. और अमेरिका से लड़ता है। Choose, go out, fight. और परमेश्वर का युद्ध को वो चुनता है। So Moses says choose. और मूसा कहता है कि तू चुन and go out. और तू बाहर जा and then fight. और तू युद्ध कर। The point that we are trying to explain here is, और जो अंश हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं, Joshua must have practiced his skills of using the sword, practicing all the battle acts or the works that people do in wars when nobody was actually involved in such things, nobody was observing him. और हम ये ऐसा जान सकते हैं कि यहोशू ने इस युद्ध में जो भी निपुणता चाहिए उसकी तैयारी जब उसे कोई नहीं देख रहा था तब उसने की है। So when the children of Israel came out, the children of Israel came out of Egypt, और जब इजरायली जो लोग जब मिस्र से जब बाहर आए, and they were wanderers, they were pilgrims, they were wanderers in the wilderness. और वो क्या बोलते हैं एक जो घूमने फिरने वाले जो झुंड जो होता है, they were journeying towards the promised land. और वो जब अपने जो प्रतिज्ञा की हुई जो प्राण था उसकी यात्रा में जब वो थे, Many must have seen Joshua. और बहुत से ने यहोशू को देखा भी होगा, And then he was using the sword. और तलवार वो इस्तेमाल कर रहा होगा, and practicing all the battle acts.
और सारे युद्ध में जो तलवारबाजी की जो तैयारी है वो कर रहा होगा। When they would have said, why do you need, we are not under the Egyptians any longer. और राजा लोगों ने उससे ऐसा कहा होगा कि ये तलवारबाजी की तुझे क्या जरूरत है, हम तो अब मिस्र में नहीं है And we are just journeying toward the promised land. और हम तो इस यात्रा में जो प्रतिज्ञा की हुई जो प्रांत है उसकी और हम जा रहे हैं। If there is anything that you need or we need, और यदि हमें या तुझे कुछ चाहिए होगा, we need to know how we can journey faster to the promised land, not about fighting and not about wielding the sword. और हमें ये ज्यादा जरूरत है कि हम जल्दी जल्दी इस यात्रा को कैसे पूरे करें, ना कि इस तलवारबाजी में हम ये सीखें। This is just a speculation. और ये कदाच ये हमारा एक ऐसा विचार है सिर्फ। But he did not go back from that. और लेकिन वो वापस नहीं गया, But he continued to do, or he continued to hold on to the skill that was given, that was God given. और लेकिन यहोशू ने जो परमेश्वर ने जो उसको तलवारबाजी का जो गुण दिया था उसे वो थामे रखा। And when one fine day came, और एक दिन ऐसा आया and Moses immediately told Joshua, he didn't tell anybody else there, but he just called Joshua and said, go out and fight with Amalek. और लेकिन मूसा ने किसी और को वहाँ पे नहीं कहा, किसी और को नहीं पूछा, लेकिन यहोशू के पास आके कहा कि तू कुछ लोगों को चुनकर युद्ध के लिए जा। So what a wonderful introduction this is. और कितना अद्भुत ही उसका परिचय है। So God would have given you some sort of a skill, some sort of a talent, some sort of an ability in your birth as well as in your spiritual birth. और इससे कदाचित परमेश्वर ने भी आपको किसी प्रकार का ये जो गुण है, जो निपुणता है, चाहे वो आपके जन्म में क्यों ना हो या आपकी इस आत्मिक यात्रा में भी परमेश्वर ने आपको दिया होगा। So that is something which is your passport, which is a passport for your future success. और ये इसको एक जो परिचय पासपोर्ट जो कहते हैं, The skill that has been given to you by God in your natural life as well as spiritual life is a passport, or is a key to your success. और ये जो गुण जो है जो परमेश्वर ने आपके संसारिक जो जन्म में जो आपको दिया है या आत्मिक जीवन में जो दिया है, एक पासपोर्ट की नहीं वो आपके लिए काम करता है। So that means that will be your mainstay, or that is going to be your anchor as far as your life is concerned. और वो आपके लिए आपका जो नींव है वो आपके लिए वो होगा। So you will definitely see success coming to you through that particular skill more than your education or your any other qualification. और आप ये देखोगे कि आपके जीवन की जो सफलता है वो इसी गुण की वजह से आपको मिलेगी। So find out what is that God given talent that you have, what is the God given skill that you have. तो इसीलिए ये पता करना है, ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमें ये जन्म से ही या हमारे आत्मिक जीवन में कौन से ऐसे गुण को, निपुणता को हमें दिया है, And start using it. और उसे इस्तेमाल करना शुरुआत करना है, Start bettering it. और Start उसे अच्छा और बनाना की शुरुआत करनी है, improve on that. और उसको और अच्छा करना है। So a day will come एक दिन आएगा when you will start using it not just for your benefit but for the benefit of the congregation that you are in, for the benefit of the society that you are in. और एक दिन ऐसा आएगा कि आप केवल अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए नहीं, लेकिन कलीसिया के भलाई के लिए और अन्य लोगों के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे। So people may discourage you, और कदाचित लोग आपको निराश कर सकते हैं, but don't neglect the gift that is in you. लेकिन आपको जो गुण जो दिया है उसको आप हल्के मत लीजिए। So that is what Paul writes to Timothy, and he says, stir up the gift that is in you. और इसीलिए पौलुस तिमुथी को लिखता है कि तुझे जो गुण दिए गए हैं उसको तू बढ़ाता जा, So stir up. और उसको बढ़ाता जा, So don't neglect that. और उसे तू पीछे उसको तू उसमें आलस ना करना। Why? और क्या कारण है? Let's turn to Proverbs, और नीति वचन को देखेंगे, chapter 22 and the last verse. और उसका 22 का जो आखिरी भाग है, 22 and 29. और 22 का आखिरी भाग जो है Do you 29 और 30। Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. 22, 29. 22 और 23, ओके, और 29 क्षमा करें, 22 और उसका 29। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, हाँ, यदि तो ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। So you see a man who is skilled. So what will happen? He will stand before kings. He will not stand before
ordinary और men. यदि हम ये ऐसा यहाँ इस वचन भाग को देखें, जो अपने उस काम-काज में जो निपुणता रखता है, जो उस अच्छे गुण को रखता है, वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, ना कि मनुष्यों के सामने, छोटे लोगों के सामने नहीं। So keep that in mind और इस विषय को आप अपने मन में रखिए। as days progress. और ऐसे जब दिन जाते रहेंगे, And if we are continuing to stand only before ordinary men, यदि आप केवल सरल लोगों के सामने ही आप खड़े रहेंगे, then we understand that we are not skilled in the area that we supposed to be skilled in. और उसका अर्थ यही है कि हमको ऐसा समझना है कि हमने हमारा जो गुण है उसमें अभी तक हमने निपुणता नहीं पाई है। So if you want to stand before extraordinary men, if you want to stand before the great men of this world or the kings of this world, you must be skilled in the thing that God has given you. और यदि आपको इस संसार में जो प्रमुख, जो विशेष, जो वीआईपी जो लोग हैं, यदि उनके सामने यदि आपको खड़ा होना होगा, तो इस गुण को आपको उस गुण में आपको निपुणता पानी होगी। So you may ask me a question. और आप कदाचित मुझे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, What is my skill? और तो मेरा ये गुण, ये निपुणता क्या है, What is my talent? और मेरा ये गुण क्या है, How do I know what my talent or skills are? और मैं कैसे जान पाऊँ कि ये मेरी जो गुण है या मेरी किसी निपुणता किस में है। So the simplest answer to that is सबसे सरल इसका उत्तर क्या है, the thing that you do without getting tired. और जो काम बिना थके आप कर सकते हो, You know, the more you do, the more delight, the more pleasure you get from it. जितना आप उसे करते हो उससे उस और आनंद आप होते रहते हो, And you feel a lot of satisfaction in you. और बहुत ही आपको एक शांति मिलती है, Satisfaction. तृप्ति मिलती है, So that is your skill. और वही आपका वो गुण That है, is your natural ability. और वही आपका जो नेचुरल आपका जो वहाँ गुण Capability है। hai. So now I can tell you there was some small laughter here, smiles here and there, but there is a disclaimer here. Don't tell me that I can watch the mobile phone continuously without getting tired. तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा जो, आप ऐसा कहे कि मेरा जो गुण है कि मैं दिन भर मोबाइल को देख सकता हूँ, ये गुण नहीं है, That is not skill. ये गुण नहीं है, That is not talent. और ये किसी प्रकार इसमें निपुणता That नहीं is है, not even ability. और ये कोई करने की क्षमता भी नहीं है। So don't go back and tell in the church they said that whatever I do without getting tired is my skill, so I'm going to watch the TV or the mobile phone. No, don't tell that. और नहीं तो आप ऐसे कलीसिया में आकर ये ना कहो कि मेरा जो गुण है कि मैं दिन भर टीवी के सामने बैठ सकता हूँ, ये आपका गुण नहीं है। So skill is something, it is for the benefit of not just you but others. That is what a skill is going to do. और ये गुण है, इसका अर्थ, ये निपुणता, इसका अर्थ है कि ये केवल आपके लिए नहीं लेकिन औरों के लिए भी इसका इस्तेमाल हो। So that is what Joshua did. The skill, the talent that he had, he went and waged war with the Amalekites and he defeated them. और यहोशू ने वही किया है, उसकी उस गुण को उसने पूरी तरह से उसका इस्तेमाल किया है और अमेरिकियों के ऊपर उसने युद्ध पर विजय पाई है। So is that all that we can know about Joshua? क्या केवल इतना ही, क्या यहोशू के बारे में हम इतना ही जानते हैं? No, we should know more about Joshua. और यहोशू के बारे में और हमें जानना जरूरी है। So Exodus chapter 24 and 13. और निर्गमान उसका 24 और उसका 13। Right. So you see that this is written about Joshua, his minister. तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पद पर चढ़ गया। यहाँ लिखा है कि अपने सेवक समेत। So that is the title of Joshua. और यहोशू का एक नाम का एक परिचय हम ऐसा दे सकते हैं। So what is the occupation or what is the designation of Joshua? और यहाँ पे जो औधा जो यहोशू को वो क्या दिया है? So he is Moses' servant. ये मूसा का ये सेवक है। So in English it has been very fine-tuned saying minister, assistant, but actual English or actual translation it is servant of Moses. और हिंदी में सेवक का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। In Hindi and Telugu we have the right word sevak, and in Telugu paricharakudu. और हिंदी में सही और तेलुगु में भी इसका सही इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ है कि सेवा करने वाला सेवक। So he was waiting upon Moses. और वो मूसा की वो बाँट जो रहा था। So that was his title. और वो ही उसका जो नाम का शीर्षक था। So let us suppose. और यदि ऐसा सोचे तो already we have seen in chapter 17 that he won a battle, he won a war against the Amalekites. हमने ये पढ़ा है कि 17 अध्याय में कि कैसे उसने अमेरिकियों से युद्ध में हराया। So if you and I were there, और यदि आप और मैं यदि उस समय होते, that we had waged a war with the Amalekites and defeated them, और हमने अमेरिकियों से युद्ध करके उसने हरा दिया हो, and while writing the title someone said Premchand, servant of so and so, और ऐसा शायद हमारे लिए भी ऐसा शीर्षक लिखा जाए कि भाई इमैनुएल और ऐसा ऐसा ये व्यक्ति है, servant of someone, और किसी का वो सेवक है, then we would have said हमने ऐसा कहा होता,
just a few days ago, और कुछ दिनों पहले we have defeated the Amalekites. हमने तो अमेरिकियों को हरा दिया, You should write warrior, और तुम्हें ऐसा युद्धवीर कर लिखना चाहिए, brave man, और बहुत ही शूरवीर व्यक्ति, courageous man. और धैर्य साहस रखने वाला व्यक्ति। What title are you giving me? और ऐसा क्या शीर्षक आप मुझे दे रहे हो? You're giving me a title servant of Moses. और आप मुझे ऐसा शीर्षक दे रहे हो कि मैं मूसा का I'm सेवक not हूँ। happy. मैं इससे खुश नहीं हूँ। You give me title of co-worker, और मुझे आप एक सहकर्मी का आप मुझे शीर्षक दे दो। colleague of Moses. Moses colleague. हाँ, और मूसा का एक सहकर्मी। So that would be happy. I will be happy with it. और इस ऐसे शीर्षक से मैं खुश होऊंगा। Anything less than that, I am not satisfied. इससे कम जो मुझे कुछ शीर्षक दे मैं खुश नहीं हूँ। That would have been our attitude. और ऐसा हमारा स्वभाव होता। But Joshua was content with it. Joshua was happy to bear the title servant of Moses. लेकिन यहोशू जो है ऐसे शीर्षक जो मूसा का सेवक कहलाने का शीर्षक को उसने अपना लिया, उसने उसे स्वीकार लिया। And not only that, we also come across a characteristic flaw, or else something not so great in Joshua in Exodus chapter 32. और 32 अध्याय निर्गमान के उसमें जो उसके चरित्र के विषय में जो कुछ एक बात जो ठीक नहीं है, उस विषय में भी हम देख सकते It हैं। is not such a bad thing, but it is just something which appears to be there while we are too young in our spiritual lives, in our physical lives as well. और ये कदाचित ऐसा उसे हम कोई खराब चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी जो अपने हम जवानी के दिनों में कुछ बातें हमारे अंदर ऐसी होती है। So the context is Exodus 32. और निर्गमन 32 Moses had gone onto the mountain, और मूसा जो है वो पर्वत की चोटी पे चला गया, and then Joshua also followed him. और यहोशू ने भी उसके पीछा किया। 40 days and 40 nights Moses spent with the Lord God, और 40 दिन और रात पर मूसा ने परमेश्वर के साथ समय बिताया। and God gave him the stone tablets, the 2 tablets. और जो आज्ञाओं के जो पत्थर है वो परमेश्वर ने उसे दिए। And then by the time the people of Israel they came, then they told Aaron saying, "We do not know what happened to Moses." और हरून को इजराइली लोगों ने कहा कि हमें तो नहीं पता मूसा के साथ अब क्या हो गया। Now you make us a god so that it can walk before us, it can lead us. और तू हमारे लिए एक ऐसे देवता की मूर्ति बना जो हमारी अगुवाई वो हमारे लिए कर पाए। And then Aaron told them to get all the gold rings. और हरून ने उसके सारे जो सोने के जो रिंग्स हैं उसे लाने के लिए कहा। And they melted them and they made a molded calf. और उसे पिघलाकर एक जो बछड़ा है उसको बना दिया। And then he said, "Behold, this is your God who brought you out of Egypt." और ऐसा कहा कि देखो ये तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र से बाहर लाया है। Then the Lord told Moses, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, "Go down, the people you brought from Egypt have sinned against me." और तू नीचे चले जा क्योंकि जिस लोगों को तूने मिस्र से लेके उन्होंने मेरे सामने पाप किया है। And then Moses came down. और मूसा जब नीचे आया, He met Joshua midway. और यहोशू को उसने मध्य राह में उसे मिला। And then Joshua said, और यहोशू ने उससे कहा, "There is a noise of singing and dance. There is a noise of war in the camp." और उसने ऐसा कहा कि मेरे यहाँ से युद्ध की ऐसी आवाजें नीचे से आ रही हैं। Then Moses tells him, और मूसा ने उससे कहा, it's noise of war, but it is a noise of singing and dancing. और ये युद्ध का आवाज नहीं लेकिन गीत गान का ही आवाज है। So in the initial stages he was not able to discern what is a noise of war and what is a sound of singing and dancing. और उसके जमाने के आरंभ के दिनों में वो इस बात से डिफरेंस नहीं कर पाया कि युद्ध की आवाज़ क्या होती है और गीत गार की आवाज़ क्या होती है। So in the initial stages as well, और शुरुआत के दिनों में in our spiritual lives, और ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन में we will not be able to discern many things, which whether it is coming from the spirit or whether it is coming from the soul or whether it is coming from the flesh. और हम भी कदाचित अपने जीवन में ये कहाँ से आ रहा है, क्या ये हमारे देह से आ रहा है, क्या हमारी अभिलाषा किस प्रकार की है, इसके बीच में हम कभी-कभी इसका अंतर हम नहीं ढूंढ पाते। So we will not be able to discern it. और हम उसका अंतर नहीं ढूंढ पाते। Whether it is from the spirit, क्या ये आत्मा से है, whether it is from our soul, from our life, that is pran, और क्या हमारे देह या हमारे आत्मा प्राण से आया है, or it is from our flesh, that is our the carnality. और या हमारे इस शरीर में जो क्या उस शरीर की इच्छा से आया है। So we need to, it will take some time for us to really exercise those senses to mature spiritually. और हमें इसीलिए इन तीनों के विषय में जो अंतर जानने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा। And thanks be to God for He has left those people who are mature believers among us so that they can correct us, they can bring us into the
right way and help us to discern things. और परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि अभी भी परमेश्वर ने हमारे मध्य में ऐसे लोगों को रखा है जो हमें इन सभी विषयों के अंतर इस भेद के बारे में हमें बता सके। So we should understand that wisdom comes through experience और हमें ये समझना है कि जो बुद्धि है वो अनुभव से आती है and through age, और वो आयु से आती है। and we may become more knowledgeable than our elders, but we need to understand we will never become wiser than them because we don't have age on our side. और हमारा ज्ञान तो बहुत कदाचित हम हमारा ज्ञान बहुत बढ़ सकता है, लेकिन हमारा जो अनुभव है वो उनकी आयु से ही वो आता है। So expertise you can gain in 30 minutes. और किसी पे निपुणता कदाचित किसी चीज में 30 मिनट में भी मिल सकती है, Experience will take 30 years. लेकिन उस जो अनुभव है वो उसके लिए 30 साल लग सकते हैं। So we need to understand the initial stage of spiritual lives. We need the support of the elders, those who have exercised their senses, to help us discern what is right and what is wrong. इसीलिए हमारे आत्मिक जीवन में हमें बड़ों की ज़रूरत है ताकि वो हमें इन सभी के जो अंतर हैं कि आत्मा से क्या है, शरीर से क्या है, या प्राण या देह से क्या है, इसके बारे में हमें बता So पाए। when they correct us, जब हमें वो ठीक करते हैं, we just heard in Brother Nehemiah's testimony as well. और भाई नehemiah के गवाही में भी हमने सुना। So don't get disheartened, और आप हृदय में निराश ना हो, but it is only for your good. लेकिन ये आपकी अच्छाई के लिए ही है। So take it in a positive stride, और- positive attitude, और इसे बड़ी अच्छे सीख के हिसाब से आप इसे समझें, and it will become a blessing to you. और तब ये आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। And so first thing is he's introduced suddenly, right? और यहोशू के में देखते हैं कि अचानक से उसका परिचय हो गया है। And the second thing is his title is servant of Moses. और दूसरा उसका शीर्षक देख सकते हैं कि वो मूसा का सेवक के ऐसा उसे संबोधित किया गया। And in his early days, he was not able to discern what is the sound or what is the noise of war and what is the sound of singing and dancing. और उसके शुरुआती जीवन में हम ये देख सकते हैं कि युद्ध की आवाज़ या गीत गान की आवाज़ का अंतर वो नहीं समझ पाता। So, and we come across another attribute, और एक ऐसे उसके चरित्र के बारे में हम देख सकते हैं। very wonderful characteristic of Joshua. और एक बहुत ही अच्छा जो गुण है यहोशू का, Exodus chapter 33, और यहोशू उसका 33 अध्याय verse 11. और उसका 11वां वचन। So, what does it say? और वो क्या कहता है? Second part. और उसके दूसरे भाग में ये लिखा गया है, But his servant Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. और क्षमा करें, निर्गमान 33 और उसके 11वें वचन में है ये। So 11th verse, the second part, but his servant Joshua, the son of Nun, और आखिरी में लिखा है, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था। so he never left the tabernacle. और हम ये देखते हैं कि वो तंबू से उसने वो कभी बाहर नहीं आया। So what was he doing? ये तंबू में क्या कर रहा था? He was waiting upon his master. और वो अपने जो उसका जो गुरु है उसका वो बाट जो रहा था। So he never left the tabernacle. और वो तंबू में से बाहर कभी नहीं आया। So waiting is the most difficult thing. और किसी के लिए इंतजार करना बहुत ही मुश्किल बात है। And it takes many experiences and years for us to learn what it is to wait. और हमें बहुत ही साल बीत जाते हैं ये इंतजार को समझने का। Whenever we go to a government office, और हम यदि किसी जो सरकार की यदि किसी ऑफिस में हम जब जाते हैं, so how much time we spend there waiting for those officials? और कितने समय हम ऐसे जो वहाँ के जो लोग हैं जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए हम इंतज़ार करते हैं। And after waiting for hours together, they give us a minute or a half a minute appointment. और इतना रुकने के बाद भी वो हमें या से आधा मिनट या 1 मिनट का समय देते हैं। So, but if we wait upon the Lord, लेकिन यदि आप परमेश्वर के ऊपर आप उसकी बाँट आप जोहोगे तो so we going to gain those blessings. तब हम ऐसे आशीषों को पा सकते हैं। Just like Joshua waited upon Moses, और जैसे यहोशू ने मूसा के पैर बाँट जोही, but we need to wait upon the Lord. लेकिन हमें जो है परमेश्वर के ऊपर हमें बाँट जोनी है। If you can turn to Isaiah 40 और यदि ऐसे उसका यशायाह उसका 40 यदि हम भाग देखें तो, and verse 31, और उसका 31 वचन, Isaiah 40 and verse 31. एक यशायाह उसका 40 और उसका 31 वचन, But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not
faint. और 31 वचन में ऐसा लिखा गया है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो याकूब के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। So you see, those who wait upon the Lord shall renew their strength. देखिए, जो यहोवा की बाट जोते हैं उनका जो ताकत है वो नए में ताजगी में बदल जाता है। I will tell you out of my own experience. और मैं अपने स्वयं के अनुभव से कहता हूँ, So if I spend enough time, that is the allotted time, meditating upon the word, praying, the rest of the day I don't have to wait or waste my time or wait upon the people of this world. और यदि मैं अपना जो समय जो है और जो समय मैंने परमेश्वर के वचन में मनन करने में जो उचित समय जो मैं जब लगाता हूँ, तब मैं दिन भर में मुझे दूसरों पे के भरोसे रहना की ज़रूरत मेरे जीवन में नहीं पड़ती। So if I cut short the time that I wait upon the Lord, rush through my reading and rush through my prayer, and then get out into the world to do my work, I will end up waiting and end up wasting as well. लेकिन यदि मैं अपने वचन पढ़ने के समय को थोड़ा सा कम कर देता हूँ या जल्दीबाजी में जल्दी बाइबल पढ़ के जल्दी प्रार्थना करके जाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरा जो समय है दूसरे कार्य करने में, उसका इंतज़ार का समय लंबा हो जाता है। So if you don't want to wait upon men, यदि आपको लोगों का इंतज़ार नहीं करना है, so to get your things done, ताकि आपके काम हो जाए, better that you wait upon the Lord. इससे अच्छा है कि आप परमेश्वर की बाट जो हो You exercise this, और ये आप कार्य को करो, that before you speak with anyone, start the day with the Lord. और किसी और से बात करने से पहले परमेश्वर के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। You may see that there are a lot of texts in your phone. और आप देख सकते हो कि बहुत से जो आपके मोबाइल में ये वचन आते हैं, Messages. वाक्य आते होंगे, हाँ मैसेजेस आते होंगे, So don't reply to them, don't jump. और उसका उत्तर देने का आप जल्दबाजी मत करो। So rather freshen up and sit with the word of God, read it, pray, and then get into your daily chores, daily और work. अपने आप को आप ताजगी में लाओ और परमेश्वर के वचन को पढ़ के प्रार्थना में आप समय बिताओ। And then you will wonderfully see how the Lord organizes the entire day so that you don't waste your time, you don't wait upon the worldly people. और आप देखोगे कि कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से सारे दिन को वो नियंत्रण करता है और आपको लोगों के ऊपर आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। From waiting, we also see another aspect of Joshua's characteristics or of Joshua's life. और हम यहोशू का ये इंतज़ार करने का जो गुण है या बाँझ होने का जो गुण है, उस ऐसे चरित्र से हम और सीख सकते हैं। There is another one which we could look at. और एक उसका एक उदाहरण हमारे सामने है, Numbers 11 और गिनती की पुस्तक and verse 28. और उसका 11 अध्याय, उसका 28 वचन भाग। So again, this context is Moses tells the Lord saying that I am not able to bear the burden of these people. और यहाँ पे इसके पीछे का कारण क्या है कि मूसा परमेश्वर से कहता है कि तेरे इज़राइल लोगों का जो बोझ है उसको मैं नहीं उठा सकता। Then the Lord tells Moses, find 70 people who are the elders in the congregation, and I will put some of your spirit on them. और परमेश्वर मूसा को ये सलाह देता है कि इज़राइलियों में से 70 जो बुजुर्ग है उन्हें तू चुन ले और उनके ऊपर मैं अपनी आत्मा को डालूंगा। And then these 70 have to come to the tabernacle. और ये 70 लोगों को जो तंबू में आना होगा। And out of the 70, 68 came, 2 did not come. और इन 70 में से जो 68 है 68 लोग वो आए, लेकिन 2 लोग उसमें से नहीं आए। And these two were Eldad and Medad. और एल्दर और मेदद ये 2 व्यक्तियों का नाम था। And the spirit of the Lord came upon them. और परमेश्वर की जो आत्मा है वो मनुष्य के ऊपर आई। And all the 70 started prophesying. और जो सारे जो 70 लोग हैं वो भविष्यवाणी करने लगे। And 68 were in the tabernacle and 2 were in the camp. और 68 लोग तंबू के मध्य में थे और 2 जो थे वो जो कैंप जो उनके जो बाहर जो तंबू थे उनमें थे। So then Joshua came to know about it. और यहोशू इस विषय में जब वो जाना, And in verse 28 he says, और 28 में वो कहता है, so Joshua the son of Nun, Moses' assistant, one of his choice men, answered and said, Moses my Lord forbid them. और तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। So then Moses corrects them. He's saying, I wish that the Lord's people, all the people of the Lord were just like me.
और मूसा उससे ये कहता है कि मैं ऐसा इच्छा रखता हूँ कि जो परमेश्वर के जो लोग हो सब मेरे जैसे नबी हों। Verse 29, if you read, और 29 यदि आप पढ़ोगे तो we'll read that, brother. मैं पढ़ता हूँ। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपनी आत्मा उन सबों में संवाद देता। So Joshua was filled with excessive zeal. और यहोशू जो है जो एक जलन उसके ज़्यादा जलन उसके अंदर But the थी। zeal was toward his master. लेकिन ये जो जलन है उसके गुरु के पक्ष में थी। And then he was not able to see anybody doing the work that his master was doing. और वो ये नहीं देख सकता था कि जो कार्य उसका गुरु करता है कोई और करे। For his master is the only one who can prophesy, who can have the communication as well as the communion with the Lord God. और वो यही समझता था कि केवल उसका गुरु ही जो है वो परमेश्वर के साथ वार्तालाप, परमेश्वर के साथ वो संगति कर पाए। So, but he could not digest when he saw the 70 others. और ये बात उसको पची नहीं कि और भी 70 लोग ये कर सकते हैं। So immediately he said, Moses, my Lord, forbid them. और इसीलिए वो मूसा से कहता है कि तू उन्हें रोक दे। And again, the second time he gets corrected by Moses. लेकिन दूसरी बार मूसा के द्वारा उसे ठीक किया जाता He है। says, I wish that all the children of the Lord were just like me. और मूसा उसे ये कहता है कि भला होता कि सारी प्रजा मेरे जैसे नबी हो जाती। And that's right. और आत्मा और परमेश्वर की आत्मा उनमें समा देती। And after that, और आगे जो है, because our zeal will not be able to do any of God's work. Let's understand it. और ये बात आप समझ लीजिए कि हमारी जो जलन है वो परमेश्वर के किसी भी कार्य को नहीं कर सकती। So that is, we read part of that in James chapter 1 as well. और जेम्स यहूदा के याकूब की इसके पत्रिका में ये देख सकते हैं। First chapter. और याकूब की पत्रिका, Read the verse. It says, man's wrath, that is 20th verse. और इसके 28 वचन में लिखा है, For the wrath of man does not produce the righteousness of God. 20 वचन है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। So anything that is zeal of man, wrath of man, और जो भी मनुष्य का जलन है या उसका जो क्रोध है, we will not be able to produce or will not be able to deliver the righteousness of God. और परमेश्वर की वो सच्चाई को वो प्रकट नहीं कर सकता। So because we are running out of time, we'll rush through a little. Please bear with us. और समय हमारा जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी इसको हम पढ़ेंगे। Later on, as we progress in Numbers, और आगे जब गिनती की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं, Joshua and 11 others, Joshua, Caleb and 10 others were selected to go on a spy expedition to the land of Canaan. और यहोशू के साथ कालेब जो है और उनके साथ 10 जो लोग थे जो वहाँ पे रहस्यमय कार्य करने के लिए उस प्रांत में उनको जाना था। So we read that in Numbers 13:16. और गिनती के 13 और 16 भाग में पढ़ सकते हैं। So we don't have to go there. यहाँ वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। We may, because we've heard it from our childhood, it may sound to be so common, but understand, out of 20 lakh people, only 12 getting selected is a big thing. और हमने इसको हमेशा अपने बचपन से हम पढ़ते हैं, इसलिए हमको अचंभित नहीं होता। लेकिन याद रखें कि 20 लाख लोगों में से केवल 12 लोगों को ही चुना गया है। So these 12 men go. और ये 12 लोग जब जाते हैं and they come back, और वापस जब आए, 10 of them bring bad report, और 10 जो लोग हैं वो खराब जो गलत जो है वो समाचार को लाए, and then 2 of them give a good report. लेकिन 2 लोगों ने केवल अच्छा समाचार Who लाया are है। they? और वो कौन है? Joshua यहोशू and then Caleb. और कालेब। And they gave a good report of the land. और उन्होंने उस जगह के विषय में अच्छा जो समाचार दिया है। And then in the same chapter 14 of Numbers, और गिनती के 14वें अध्याय में, and we read from verses 6 to 10. और जब 6 और 10 के जो वचन भाग को पूरा पढ़ते हैं, So they gave a very good testimony, good report of the land. और एक अच्छी जो गवाही है उस जगह उस जगह के बारे में वो कहते हैं। So they stood for truth, both Joshua and Caleb. और वो जो है जो सही है, जो सच्चा है, उसके लिए वो खड़े हैं। But we'll read Numbers 14 and verse 24. और गिनती 14 उसका 24 अध्याय पढ़ेंगे, वचन भाग पढ़ेंगे। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और उसने
पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। So two people stood for giving a good report. और दो व्यक्ति वहां पर अच्छे जो समाचार है उसको देने के लिए वहां पे खड़े रहे। Two people testified of the truth. और दो लोगों ने अच्छा जो सही है उसकी गवाही के लिए वो खड़े रहे। There was equality in their testimony, और दोनों की जो गवाही में समानता थी and there was the zeal was equal in them. और दोनों में जो उत्साह था वो एक सा था। But what happened? लेकिन क्या हुआ? In verse 24 we read, और 24 वचन में हम देखते हैं the Lord says, और परमेश्वर ये कहता है, but my servant Caleb, और मेरा जो दास कालेब, because he has a different spirit. और उसकी अलग आत्मा है। Now what would have gone on in Joshua's mind? और यहोशू के मन में क्या हो रहा होगा We don't know. हम ये तो हम नहीं जानते। But if you and I were there, लेकिन यदि आप और मैं वहां पर होते oh, we would have put a sackcloth on our face. और हमने ये जो बोरी है वो अपने मुंह पे उसको से अपने आप मुंह छिपा We लिया would होता have gone into the room and then wept and wept and wept. और हम अपने रूम में कक्ष में जाकर बहुत ही हम रोए होते। Oh, Caleb and Joshua, we too gave the good report. और हम ऐसा कहते हैं कि मैंने और कैलेब ने मिलके तो अच्छी गवाही का और समाचार को लेके आ 10 रहे हैं। people gave a bad report. और 10 लोगों ने गलत ये समाचार But दिया। look at the Lord. लेकिन परमेश्वर ने देखो, He has recognized Caleb. और उसने केवल कालेब को ही उसने उसको चुन Recognition दिया. हाँ, उसका परिचय किया। He says he is my servant. और वो ऐसा भी कहा कि वो मेरा दास है। And he says he will give his descendants the promised land. और उसे कहा कि उसके जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये जो प्रतिज्ञा But का he जो did not say जगह है वो देगा। a single word about me. लेकिन मेरे लिए तो एक शब्द भी नहीं कहा। No, I will not serve this Lord. मैं इस परमेश्वर की अब मैं सेवा नहीं करूंगा। I'll resign. मैं यहाँ से इस्तीफा दे दूंगा। No notice. और कोई भी मैं यहाँ पे समय नहीं दूंगा मैं। Full and final settlement. I'll leave now. सब कुछ पूरा सेटलमेंट करके मैं चला जाऊंगा। That would be our attitude. और ऐसा ही हमारा स्वभाव होता। But we don't see Joshua doing that. लेकिन यहोशू के विषय में हम ये नहीं देखते। He was quiet. वो बहुत शांत था। He was content to be called servant of Moses. वो केवल इससे से वो तृप्त था कि मेरे को मूसा का सेवक इस शीर्षक से मैं वो संतुष्ट था। So if this story had ended here, यदि ये जो कहानी यदि यहाँ पे समाप्त हो जाए, we would have all left the youth meeting with great disappointment. और हम सारा जो जवानों की जो सभा है बड़े निराशा से हम फिर यहाँ से जाएंगे। We were told saying, you know what, 2 of us will work, only one will get recognized. और हम कदाचित ऐसा सोचेंगे कि 2 लोग यदि हम 2 में से कोई काम करेगा तो एक ही को परमेश्वर उठाएगा। So I don't know, maybe you would get, I would rather be away from it so that I can't see you being recognized. और हम कदाचित ऐसा सोचते हैं कि एक ठीक है भाई आप आगे बढ़ो, आपको परमेश्वर दे, शायद परमेश्वर मुझे वापस कुछ ना दे। But thankfully the Lord has extended the testimony of Joshua. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यहोशू की ऐसी गवाही को उसने आगे और बढ़ाया है। So we come to Numbers chapter 27. और गिनती उसके 27 अध्याय में जब आएंगे, We'll read these portions very carefully, very important to us. और ये बहुत ही जरूरी है और इसको बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे। Verse 18. और गिनती 27 उसका 18 वचन। And the Lord said to Moses, और यहोवा ने मूसा से कहा, take Joshua the son of Nun with you, a man in whom is the Spirit, and lay your hand on him. हाँ, यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। So if we go back to Numbers chapter 14 and look at verse 24, और यदि गिनती 14 और उसके 24 के वचन को यदि हम वापस जाएं, when there is a mentioning of he has a different spirit about Caleb. और कालेब के लिए ऐसा लिखा कि उसमें कोई दूसरी ऐसी विशेष दूसरी आत्मा थी। If you are reading New King James Version or King James Version, और यदि किंग जेम्स वर्जन यदि इसको यदि आप पढ़ रहे हो, so you see that it is a capital, it's not a small, it's a small s for spirit. और यहाँ पे एक छोटा सा एस जो शब्द जो आत्मा का जो इंग्लिश में जो स्पिरिट को उसमें छोटा एस लिखा गया है। And then when you come to this chapter, that is verse chapter 27 and verse the one which you read 18. और 27 और 18 जो वचन भाग हमने पढ़ा, If you are reading English Bible, what letter is it? Is it a small letter or capital letter? S. It's a capital S. और इंग्लिश में यदि ये जो स्पिरिट जो शब्द है उसकी शुरुआत छोटे एस से नहीं लेकिन जो बड़ा अल्फाबेट है एस का उससे किया गया So है। what does it mean? It is he is a man with the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit. इसका क्या अर्थ हम समझते हैं कि ये यहोशू जो ऐसा व्यक्ति था जो परिपूर्ण पवित्र आत्मा से भरा था। So what does the 19th verse say? और 19 वचन क्या कहता है? Yeah. So let's set him before Eleazar, the priest, and before all the congregation, and inaugurate him in their sight. और उसको
एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे। And 20th verse, you shall give some of your authority to him, that all the congregation of the children of Israel may be obedient. और अपनी महिमा में सब कुछ उसे दे जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। So, what a wonderful blessing that we get to see in Joshua's life. और एक कितने अद्भुत आशीष को यहोशू की जिंदगी में देख सकते हैं। And not only that, in verse 21, middle part, और इतना ही नहीं, 21 के मध्य भाग में भी, at his word they shall go out, and at और his word they shall come in. और उसकी आज्ञा में वो बाहर जाएंगे और उसकी आज्ञा में ही वो अंदर आएंगे। Oh, see, in the 14th chapter we see Caleb was recognized, but here we see a better recognition being given to Joshua. और गिनती के 14 अध्याय में हम देख सकते हैं कैसे कालिब को वहाँ पे परमेश्वर ने विशेषता दी है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहोशू को भी और अधिक विशेषता उसको दी गई है। Joshua, the son of Nun, और यहोशू नून का जो पुत्र, your servant, और तू जो सेवक, and he has a man of, he is one who has the Holy Spirit. और वो व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा से निपुण है। Now set him before the entire congregation, अब उसको सारी कलीसिया के सामने तुम खड़ा कर दो and then appoint him as a commander. और उसको आप उसका Commander. एक सरदार की नहीं तुम उसको खड़ा कर दो। And then at his word people will go, at his word people will come in. और उसके शब्द से वो आज्ञा से वो आगे जाएंगे और उसके शब्द से वो अंदर आएंगे और उसके शब्द से वो बाहर जाएंगे। So is it a better recognition? क्या ये विशेषता क्या अधिक नहीं है? What is the secret? और उसका मूल क्या है? Waiting. और वह इंतजार करना, Waiting upon his master. और उसके सेवक के ऊपर इंतजार बांट जोना। He did not have any bitterness when Caleb was recognized before him. और उसके अंदर कोई जो मलिनता, जो जलन नहीं थी, Uh, कड़वाहट नहीं थी जब कालेब को परमेश्वर ने वो विशेषता दी। so he was okay with his brother being recognized much before him. और वो इसलिए वो इस बात को उसने स्वीकारा कि उसके पहले उसके जो भाई कालेब को परमेश्वर ने वो विशेषता दी। And finally in Numbers 30-12, both of them are recognized together that they have wholly followed the Lord. 30-12. और गिनती के आगे इसमें 32 और इसके 11 हम देख सकते हैं कि दोनों को परमेश्वर ने एक समानता में उनकी विशेषता को They followed the Lord wholly. और उन्होंने परमेश्वर को पूर्ण रीति से उसने उनके पीछे वो हुए हैं। And thereafter there is no turning back as far as Joshua is concerned. और उसके बाद में हम देखते हैं कि यहोशू को यदि हम उसको समझे तो फिर कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। So if we read Deuteronomy chapter 1 and then chapter 3, we see that Joshua needed a lot of encouragement. और हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण उसके 1 और 3 अध्याय में यहोशू ने बहुत से लोगों को उसने उत्तेजित किया है। नहीं, he needed encouragement. Joshua needed encouragement. क्षमा करें, यहोशू को उत्तेजित होने की जो जरूरत पड़ी थी। Moses was not going to lead the children of Israel into the promised land. और क्योंकि मूसा जो था वो उस प्रतिज्ञा के उस जगह पे वो लेके नहीं जा पाया। Now the Moses upon whom he waited for 40 years is not going to enter the promised land. और जो मूसा जो उसके गुरु जिसके लिए उसने 40 वर्ष इस बात जो ही, अब वो इस जगह पे नहीं जा सकता। So he was depressed. और वो निराशा में था। And then the Lord told Moses, encourage Joshua. लेकिन मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू यहोशू को तू उत्तेजित कर। We need that encouragement. और हमें भी ऐसे उत्तेजित होना No matter जरूरत है। how many our achievements are, how many achievements we have, हमें और ये हमारी चाहे कितने भी हमने बहुत सी सफलता हमने क्यों ना पाई हो, still we would need that encouragement. लेकिन हमें भी तो भी हमें वो उत्तेजित जो भाग है वो चाहिए। God sends his servants, God uses the elders, God uses our parents to encourage us. और इसलिए परमेश्वर उसके सेवकों को भेजता है और परमेश्वर बड़ों को हमें उत्तेजित करने के लिए भेजता है। हमारे माता पिता के द्वारा भी हम उत्तेजित होते हैं। And not only that, he uses his word to encourage us. और इतना ही नहीं, सबसे इसकी वचन से भी हमें उत्तेजित करता है। And then toward the end of Deuteronomy, और व्यवस्था विवरण के आखिरी अध्याय में, आखिरी भाग में, we see that Joshua is given the commission. Joshua is given the work to lead the children of Israel into the promised land. और हम ये देख सकते हैं कि यहोशू को जो प्रमुख काम दिया गया कि इस्राएलियों को अब उस प्रतिज्ञा किए हुए जगह पे लेके जाने के लिए। And we also see by 34:9 of Exodus, we see that he was full of the Spirit of God. और Spirit of wisdom. और निर्गमान उसके Deuteronomy. क्षमा करें, व्यवस्था विवरण उसके 34:9. और 34 और उसके 9 में लिखा है कि
हम ये Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom. हाँ, और यहोशू पूरे बुद्धिमान की आत्मा से वो भरा हुआ था, हम ये देख सकते हैं। When was it written? और ये कब लिखा है? When he was around 80 years. जब वो 80 वर्ष का था। So he started 40 years ago. This was not told of him. और 40 वर्ष पूर्व यहोशू के बारे में ये नहीं कहा गया था। But after 40 years, now he was full of wisdom. लेकिन 40 वर्ष के बाद बुद्धिमान परिपूर्ण बुद्धि से की आत्मा से परिपूर्ण था। And then we come to Joshua chapter 1. What happens in the first verse? Let us read. और यहोशू जब हम उसके पहले अध्याय में आते हैं तो क्या हम First देखते हैं? verse itself. और पहला वचन भाग हम पढ़ते हैं। After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying. और यहोवा का दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा। So until then, the Lord was speaking to Moses, and then Moses was speaking to Joshua. और हम देखते हैं कि तब तक मूसा के साथ परमेश्वर बात कर रहा था और मूसा जो है यहोशू से बात कर रहा था। So now Moses has departed. अब मूसा यहाँ से चला गया है। Now the Lord is directly speaking with Joshua. अब देखते हैं कि यहोवा जो परमेश्वर है वो नून के पुत्र यहोशू से सीधे बात कर रहा है। What a great privilege it was. कि कितना अद्भुत ये उसका मान दिया गया है। So because the Lord tested him, और क्योंकि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की है, tested him for 40 long years. और 40 वर्ष उसकी परीक्षा की है। And after 40 years, then the Lord started speaking to और Joshua. 40 वर्षों के बाद में परमेश्वर उससे बात करना की शुरुआत की है। When you go home, read the chapter. और आप जब घर जाएंगे तो इस वचन भाग को आप पढ़िए। Wonderful. We saw it in the table message as well. 1:8. This book of the law, you shall meditate it upon it day and night, and you shall do according to what has been commanded in that. और यहोशू 1 और 8 में हमने मेज के सेवकाई में भी हमने इस बात को पढ़ा कि कैसे व्यवस्था की पुस्तक में सदा तेरे चित्त से कभी ना उतरे और तू दिन रात इस पे ध्यान करे। And the Lord himself gives assurance to Joshua, be of good courage and be strong and of good courage. और इसलिए परमेश्वर उसे ये प्रतिज्ञा देता है, तू हिया बांध कर तू दृढ़ हो जा और तू भय ना रख। And also in verse 9 he says, have I not commanded you, be strong. और वो ऐसा कहा कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि तू दृढ़ रहे। So if a man tells us we get strength, if God tells how much strength he would have got then. यदि मनुष्य हमसे कहता है कि अगर ऐसा कहे तो हमें ताकत मिलती है, लेकिन अंदाज लगे कि यदि परमेश्वर हमसे कहे तो हमें कितनी ताकत मिलेगी। So he was encouraged through and through both by Moses as well as the Lord himself. और हम ये देख सकते हैं कि मूसा के द्वारा भी उसे प्रेरित किया गया और उत्तेजित किया गया और यहोवा ने भी उसको उत्तेजित और प्रेरित किया। And not only that, Joshua is also a very quick learner. और इतना ही नहीं, यहोशू जो है बहुत ही जल्दी सीखने वाला वो व्यक्ति था। He was not forgetful of the previous lessons that were taught to him. और वो किसी प्रकार जो पीछे बातों से जो सीखा है, जिस अनुभव से सीखा है, उसमें वो भुलक्कड़ नहीं था। So when we read Joshua chapter 2, और यदि यहोशू 2 पढ़ते हैं, अध्याय पढ़ते हैं, so he sent 2 men to spy the land of the city of Jericho. और यरीको इस प्रांत में 2 लोगों को रहस्यमय काम करने के लिए उसने भेजा। Why did he send only 2? और केवल 2 को क्यों भेजा? Why? क्यों? Last time how many was sent? और इसके पहले कितने लोगों को भेजा गया? 40 years ago 12 people were sent. 40 वर्ष पूर्व 12 लोगों को भेजा गया। How many people brought good report? कितने लोगों ने अच्छी उस समाचार को लाए? 2 people brought good report. केवल 2 लोगों ने लाए। So how many people should he send now? अब कितने लोगों ने उसे भेजना चाहिए? Only 2 people. केवल 2 को ही भेजा है। Because he knew another 10 will only bring bad report. क्योंकि उसे पता था कि और 10 लोग केवल बुराई के समाचार को So he लाएंगे। learned the lesson. इसलिए उसने पाठ को सीख लिया And he never forgot the lesson. और इस पाठ को कभी नहीं भूला। Oh, we should also remember our lessons that are taught to us. इसलिए हमें भी जो पाठ सिखाया जाता है हमें नहीं भूलना है We should never forget those lessons. और ऐसे पाठ को कभी नहीं भूलना So है। he is a quick learner, he is a good learner. और वो तुरंत सीखने वाला, जल्दी सीखने वाला व्यक्ति था। And then this man of war, he went on to defeat 34 kings, that is not written in chapter 12. और ये last जो verse. परमेश्वर का जो व्यक्ति था, युद्ध करने वाला शूरवीर था, आगे देखते हैं कि लगभग 34 राजाओं को उसने हराया है। और आगे भाग में ये पढ़ सकते हैं। Chapter 12. और यहोशू उसका 12वां अध्याय 31 kings, not 34. 24th verse. और क्षमा करें 31 राजाओं को उसने हराया है। All the kings 31. और सब मिलाकर 31 राजा को उसने हराया है। 31 kings. और 31 राजाओं को हराया है। It's not 1, 2, just imagine. और केवल 1 या 2 राजा नहीं है, इस पे विचार करिए। In our context, it is like India going to war against 31 countries and defeating it. How और- big that task is. और ये यदि आपको समझना हो
तो हम ये कह सकते हैं कि भारत देश जो है एक देशों के सामने वो युद्ध कर रहा है and then becomes victorious as well. और इन सभीयों में हम विजय पाते हैं। So this is not a small feat, it is a phenomenal feat that Joshua achieved. और ये कोई छोटा ओहदा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा ओहदा यहोशू को मिला है। And that's the reason the Lord exalted Joshua. इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू के विषय में वो आनंदित हुआ है। And few things, two more things we'll see and close. और दो विषय देख के हम समाप्त करेंगे। So chapter 19 and verse 49 of Joshua. और यहोशू उसका 19 और उसका 34 वचन 19 and 49. 19 और उसका क्षमा करें 49 वचन भाग। जब देश को बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इज़राइल ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। Yes, that's enough. So in 1914 we see that the entire land was distributed, was divided and given to all the tribes of Israel. And after distributing to everyone, Joshua was the last one to take his portion. और हम यहाँ पे ये वचन भाग देखते हैं कि जब सारा जो जगह जो उनको ज़मीन जो मिली थी उन सभी 12 जो गोत्र में ये बांटा गया और सब कुछ जब बांटने के बाद जो बच गया जो आखिरी में नून के पुत्र यहोशू को भी भाग दिया गया है। What a selfless leader he is. और कितना ही ये निस्वार्थ ये जो उनका वो सरदार है। So you see, he never asked the children of Israel saying, I am the leader, give me the portion first. He never said that. और उसने कभी भी इज़राइल से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा सरदार हूँ तो मुझे ये भाग दो। So he never said that. But Caleb came and said, give me Hebron. और लेकिन कालेब आकर कहा कि नहीं, मुझे हेब्रोन इस प्रांत को तुम मुझे दे दो। He asked for his portion. और उसने अपना भाग को मांग लिया। Just imagine this man of God distributing the entire land to everybody, and he was the last one to receive, being a leader. और आप इस बात को आप अपने स्मरण में लाइए कि ये जो व्यक्ति है यहोशू जो है, और जब सारे जो जगह है, जब सारे इज़राइलियों को की गोत्र में जो वो बांट देता है और आखिरी में वो उसे वो भाग मिलता है। And see what he says. और आगे वो क्या कहता है in chapter 24 and verse 15. और 24 और उसके 15 वचन में। In 23 he says that everything he attributes to God's grace and God's glory. He doesn't take any glory for himself. और वो अपनी प्रशंसा के लिए वो कुछ नहीं, अपनी प्रशंसा वो नहीं करता, सारी प्रशंसा और महिमा परमेश्वर को देता है। And in chapter 24 and verse 15, last part, और 24 और उसके 15 के आखिरी भाग में, after challenging the children of Israel, और जब वो चुनौती देता है इजरायली जो प्रजा के मध्य में, who do you want, you choose. और तुम्हें किसको चुनना है तुम चुनो। Who do you want to serve, you choose today. और तुम्हें किसकी सेवा करने आज तुम उसे चुनो। But as for me and my house, we will serve the Lord. लेकिन परंतु मैं तू और मेरा घराना जो है वो केवल परमेश्वर की सेवा करेगा। That is a famous verse. और ये बहुत ही जो प्रिय और सब जानने वाला ये वचन भाग है। In our houses, the verse will be on one or the other wall. और हाँ, हमारे घरों में भी ये वचन भाग किसी दीवार पे होगा। But Joshua didn't put it on the wall, but he put it in his heart and he served the Lord. और यहोशू ने ये वचन भाग को किसी दीवार पर नहीं, लेकिन अपने हृदय में उसने उसको स्थापित कर दिया है। And the last thing about Joshua. और आखिरी यहोशू के बारे में, And chapter 24 of Joshua and the 29th verse. और यहोशू उसका आखिरी जो अध्याय है उसका 29 वचन, 24 का 29। Now it came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died being 110 years old. और इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। Who died? कौन मरा? Joshua. और यहोशू मरा है। At what age? और उसकी आयु क्या थी? 110 years old. 110 वर्ष का था। That's not important. और ये जरूरी नहीं है। What's the title now? लेकिन उसका जो शीर्षक क्या है? Title. When he started? और जब उसने शुरुआत की तब क्या था? Whose servant was he? वो किसका दास था? What is written now? और अब क्या लिखा गया है? Servant of Lord. और यहोवा का दास लिखा गया है। So the reward of waiting. और इसका अर्थ है कि बांट जोने का जो मूल जो प्राप्ति है। And then the reward of working on the skill that has been given by God. और जो अपने निपुणता, अपने गुण पर काम करने का इनाम। And
the reward of being obedient when correction is given by the elders. और अपने आप को ठीक ठाक करना जब बड़ों के द्वारा आपको कुछ बताया जाए, The reward of being patient even when someone else is recognized before us. और उस इनाम को पाना कि उसके सामने किसी और को यदि उसको विशेषता दी जाए तो उस पर इंतजार करना, The reward of waiting for everyone to receive their inheritance and receiving it in the end. और इस बात का की बात जो ना इंतजार करना कि सबको बाकी सभी को सब भाग मिल जाए और उसके बाद में अपने आप को वो सोचे। Now, what is the title? अब उसका शीर्षक क्या है? Servant of the Lord. और यहोवा का दास ये शीर्षक है। Wonderful life, isn't it? और कितना अद्भुत ये जीवन है, देखिए। A lot of things that we can learn from Joshua. और बहुत सी चीजें यहोशू के जीवन से सीख सकते हैं। We should wait upon the elders. We should wait, most importantly, upon our Lord Jesus Christ. और इसीलिए हमें अपने बड़ों पर की बात जोना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि परमेश्वर की बात जोनी है। So what Paul told Timothy, we should also tell ourselves. और पौलुस ने जो तिमोथी से कहा वो सारी चीजें हमें अपने आप को Do कहनी not है। neglect the gift that is in you. और जो भेंट जो गुण आपको दिया है उसको आप इनकार मत करो, Stir up the gift that is in you. और जो दिया है उससे आप बढ़ोतरी में लाओ। So we should continue to remember these things. और ये सब स्मरण करने में हमें ऐसा प्रयत्न करना है, Put these things in practice. और ये सारी चीजें हमारे अपने कार्यों में लगानी है। And once again, remember Joshua 1:8. और फिर एक बार यहोशू 1 और उसका 8 हमें समझना है, So that you should meditate in the law of the Lord day and night. और इस व्यवस्था को चित्त करना है और दिन रात इस पे मनन करना है। So meditate day and night. और दिन रात मनन करो, And then do according to what it says. और जो यहाँ कहा गया है वैसा करो, Wait for your time. और अपने समय का इंतजार करो। Your time will come. The Lord will give you better recognition. He will give you a better position. He will give you a better honor. और वो समय आएगा कि जब परमेश्वर आपको इससे ज़्यादा वो आपको इनाम देगा, इससे ज़्यादा वो आपको आपका परिचय करेगा और विशेषता आपको देगा। And one fine day when we leave this world, और एक दिन हम जब संसार को छोड़ देंगे, the Lord through His Holy Spirit will testify that we were His servants. और परमेश्वर उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे लिए गवाही देगा कि हम उसके दास थे। So we started our journey, our Christian journey, our life of a believer. और हमने एक विश्वासी की नहीं अपनी इस क्रिस्ती जीवन की शुरुआत की। So we should continue it. और हमें इसे निरंतर आगे बढ़ाना है। Last Ecclesiastes 7:8. और सबोदेशक 7:8. और उसका 7 और उसका 8 वचन। हाँ. और किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। The end of a thing is better than its beginning. हाँ, और किसी काम का आरंभ उसके अंत से उत्तम है। किसी काम का अंत उसका आरंभ किसी से, काम का आरंभ से उसका अंत उत्तम है। So the end of a matter is better than the beginning. हाँ, और जो शुरुआत है उससे अच्छा उसका अंत है। Whatever it is that you started, whether in your education, in your job, in your spiritual life, do not end it abruptly. Continue it. आपने जो कुछ भी शुरुआत किया हो, चाहे आपने व्यवसाय के जीवन में क्यों ना हो या आपके आत्मिक जीवन में क्यों ना हो, जो शुरुआत किया है उसे छोड़ ना दीजिए, मध्य रास्ते में उसे इनकार ना कीजिए। And you will see the Lord's blessing upon your life. आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को तब आप देखोगे। May the Lord bless His word. परमेश्वर इस भाग को आशीषित करे। Anna will come and pray. फिर एक बार तिमोथी को जो और पौलुस जो चेतावनी दिया था प्रभु जी, हम उसके लिए बहुत ही आभारी प्रभु जी। उतना नहीं प्रभु जी, आज जाशुआ के बारे में बहुत कुछ ही बात प्रभु जी हमको सिखाया। हाँ प्रभु जी, जाशुआ 1:8 से प्रभु जी आज का टेबल संदेश में भी प्रभु जी आपका बात का, आपका वर्ड को कितना पावर है हमको सिखाया। इतना नहीं प्रभु जी, जाशुआ प्रभु जी अचानक बुलाया गया था और प्रभु जी नम्र होकर इंतज़ार करने वाला बनाया, और मूसा का पक्ष में क्रोध रखने वाला था। और 40 दिन 40 रात मूसा जब पर्वत में था, प्रभु जी पेशेंस से उनका राह देखता रहा। और प्रभु जी कई बार जवान का 40 साल का पहले युद्ध का नाद आवाज़ क्या है, और प्रभु जी
नाट जो एंजॉय करने का आवाज़ जो समझ नहीं पाया था। और प्रभु जी जब 12 लोग जो भेजा गया था उसमें जाशुआ को रखा है, फिर भी प्रभु जी कालेब को प्रथम स्थान देने के बाद भी एक कुड़कुड़ा नहीं है, नम्र होकर दीन होकर प्रभु जी इंतजार किया। आखिर में 27 में प्रभु जी और उनको प्रभु जी इसी से आत्मा से प्रेरणा किया, मनुष्य बस के गवाही दिया गया परमेश्वर के द्वारा। और प्रभु जी और 33 में उनको रिकग्नाइज किया गया था। और प्रभु जी ऐसा परमेश्वर है जो एज बढ़ते हुए प्रभु जी उसका फुल ऑफ स्पिरिट से उनको भर दिया है प्रभु जी। और ये हमारा हमारा जवान के जीवन में हो, हमारे जीवन में हो सके। और प्रभु जी बहुत कुछ 12 विषय हमारे सामने आपका दास के द्वारा अनुभव के द्वारा हमको मिला प्रभु जी। और सहायता करे पिताजी। और जो 12 लोग के बारे में जो पाठ सीखा था, इसके लिए प्रभु जी जब जाशुआ जो प्रभु जी अगुवा बना था, केवल 2 ही लोग चुनकर भेजा था। और प्रभु जी 31 किंग्स को प्रभु जी आउट ऑफ 32 में वो जीत गया है। और प्रभु जी और उनका समय में प्रभु जी बहुत ही आत्मा से प्रेरण से काम किया प्रभु जी। इतना नहीं प्रभु जी सारे परिस्थिति में आखिर तक ईमानदार रहा। कोई प्रभु जी जो सब लोग जो वरदान तो बांट दिया, आखिर में जो बचा है प्रभु जी वो लिया है। कालेब तो हेब्रोन को मांगा था, लेकिन वो कभी भी प्रभु जी जल्दीबाजी से मुझे ये दे दो ऐसा कुछ मांगा नहीं प्रभु जी। और पिताजी इतना नम्र जीवन के द्वारा पिताजी जो भी परिस्थिति उनके सामने आया सब सहा। और प्रभु इसके द्वारा और आखिर में प्रभु जी मैन ऑफ गॉड परमेश्वर का दास बन गए प्रभु जी। पहले मूसा का दास था, अभी परमेश्वर का दास बन गया। आज जवानी मीटिंग में प्रभु जी जो भी हमारे प्रिय सीखा है और प्रभु जी ऐसा छोड़ के ना जाए। और प्रभु जी ये जो हर एक बात जाशुआ के बारे में बताया गया उनका जीवन में परिपूर्ण रीत से काम होने के लिए सहायता करे। हो सकता है 2 बीच में समाधान नहीं होगा और प्रभु जी दूसरा के बारे में कुड़कुड़ा होता होगा और प्रभु जी कार्य करने में कई प्रभु जी थक जाता होगा, लेकिन जाशुआ कभी थका नहीं है प्रभु जी, ईमानदार से रह गया प्रभु जी। वेटिंग करने का जीवन है। ये सारे अनुभव से प्रभु जी हमारा कलेशों का बड़ा ये प्रेम से बढ़ने के लिए सहायता करे। आपका बड़ा प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु जी हमारे प्रिय भाई प्रेमचंद अन्ना के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका दास और सहकर्मी प्रभु जी हमारा प्रिय भाई मोजस और प्रभु जी और रहमिया और इस रीत से प्रभु जी और प्रभु जी और विल्सन और प्रिय भाई और प्रेमचंद अन्ना सेकत प्रभु जी वापस हैदराबाद जाएगा और विल्सन मुंबई जाएगा, साथ में रहे प्रभु जी। ये सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनका संगति के द्वारा जो भी हम लाभ पाए प्रभु जी हम कभी नहीं भूले। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हुए आने वाला बैरशबा का हर एक जरूरत को स्वर्गीय भंडार से पूरा करे प्रभु जी। आज तक जो भी बैरशबा पक्ष में सेवा करता है या मदद किया सबके लिए धन्यवाद करते हुए चाय का समय भी आपका आशीष मांगते हुए प्रिय लोग प्रभु जी हमारा बहन लोग कितना प्रेम से प्रभु जी वचन सुना प्रभु जी, बड़ा खुशी के साथ घर जाने के लिए सहायता करे। जो भी प्रभु जी उनका इवनिंग जॉब्स के भी सुरक्षित जाने के लिए भी सहायता करे। फिर वापस आप किच्चा हो अब मिलने तक आपका अनुग्रह में रखे। भाई देवदास अन्ना उनका परिश्रम के लिए भाई और हमारे जिम्मेदार भाई लोग का परिश्रम के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु जी फिर वापस मिलने तक आपका पंखों के नीचे हम सारे लोग को छिपा के रखे। ये छोटी सी विनती प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु का नाम मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करे, आमीन। Now unto him who is able to keep us from falling and present us faultless and blameless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God be glory and honor, power and dominion both now and forevermore. Amen.